So let's start our first derivation. इस first derivation में we have a question in which we have to find the resultant of a two vectors which are inclined with an angle theta. Okay, suppose we have a two vectors. First vector is A, or should we can represent this vector by P. Okay, suppose this is a vector P and this is a vector Q. Okay, we have a two vectors P and Q, and the angle between these two vectors is theta. Suppose the angle between these two vectors is theta. So we have to find the resultant of these two vectors. Okay, so let's R is a resultant vector of these two vectors P and Q. Okay, अब इस डेरिवेशन क्या करना, now we have to just make a parallelogram. Okay, we have to make a parallelogram. Simply this is a derivation of law of parallelogram, which says that if we represent two vector as an adjacent sides of a parallelogram, then the resultant should be represented by their diagonal of a vector. Okay, so how can we find the R? Simply हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरह का पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नाउ अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो यहाँ पे दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसको हम सपोज नेम देते हैं. ठीक है, सपोज हम नेम देते हैं यहाँ पर इट्स A, B, C, D एंड E. तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम इसमें हमने सबको नेम दे दिया A, B, C, D, E. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ये करना, जो ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल जो कौन सा A C, यहाँ पे ट्रायंगल जो है D A C, ट्रायंगल D A C जो बिगर ट्रायंगल है. ठीक है, इस बिगर ट्रायंगल, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखें, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक, नाउ वी आर अप्लाइंग the Pythagoras theorem on triangle DAC. Okay, so how can we apply? So according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square. So hypotenuse is here, the hypotenuse is AD. So AD square is equal to the perpendicular square. Perpendicular square is DC square plus AC square. This is the Pythagoras theorem. Okay, now we just represent the value. So what is the value of AD? The value of AD is the R square. Okay, R is the resultant, so R square is equal AD square. Okay, now DC is missing, so we just represent DC as it is plus. Now in diagram we can see that AC is just equal to sum of AB and BC. So we can represent AC as AB plus BC whole square. Okay, is it clear? अब यहाँ पे क्या करना, now we have to just open this formula. So R square is equal to DC square plus AB plus BC whole square. So what is this? It's AB square plus BC square plus 2AB BC. This is a formula of A plus B का whole square. Okay, now just we have to put the value of AB, BC and all the these terms. Okay, now this is R square, this is DC square plus, now what is the value of AB? As per diagram, the value of AB is Q. Okay, so the value of AB is Q, so it's Q square plus, we don't know the value of BC, so it's BC square remains same plus 2 AB is just a vector Q and we don't know the value of BC, so BC is represented as it is BC. Okay, now अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा DC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर. अगर डायग्राम वापस चलते हैं हम लोग, देख रहे हैं आप लोग कि जो हमारा DC स्क्वायर एंड दिस BC स्क्वायर, so DC square is BC square is just equal to the BD square. Why? Because this is also a right angle triangle. तो यहाँ पे जो DC स्क्वायर हो गया, DC स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे किसकी,
बी डी स्क्वायर के विच इज हाइपोटेनियस। ओके, सो यहाँ पर और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड्स इक्वल होती हैं, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इसका मतलब जो यहाँ पर बी डी है, बी डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर पी के। ओके, सो यहाँ बी डी किसके इक्वल हो गया, वेक्टर पी के इक्वल हो गया। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, दोनों को साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर क्यू इंटू बी सी। अब डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी स्क्वायर के, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बी सी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, अभी हमने पीछे देखा है कि बी डी की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, वेक्टर पी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर जो होगा हमारा, बी डी स्क्वायर वो हो जाए सीधे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इंटू बी सी। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। नाउ फिर से हम लोग आएंगे ट्रायंगल में। ठीक है, फिर से ट्रायंगल में आते हैं। कौन से ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे आएंगे, ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में। ठीक है, डी बी सी ट्रायंगल, डी बी सी ट्रायंगल में इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज बी सी और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज बी डी एंड बी डी इज रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली पी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग बी सी की वैल्यू निकालें तो सिंपली बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा इस पी कॉस थीटा। बस इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधे क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q, base is p cos theta. So this is the derivation of law of parallelogram। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि we have to find the resultant of two vectors which are inclined at an angle थीटा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स जो उनके बीच का एंगल थीटा है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हम इस डेरिवेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ अब इस फॉर्मूले से भी कुछ कंडीशंस आते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। ठीक है, सपोज अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। ओके, और cos 90 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, दिस टर्म बिकम 0। सो वी गेट अ फॉर्मूला दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a resultant vector when the angle between these two vectors is 90 डिग्री। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज करते हैं थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, इफ थीटा इज 0 डिग्री मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हो, वेक्टर पैरेलल हो, तो क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में जहाँ पे cos 90 था वहाँ पे cos 0 हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 0 इज 1। तो सिंपली ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो आर इक्वल टू सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। ओके, square square cancel out, so we simply get r is equal to
P plus Q. This is a formula of resultant of two vectors when the angle between these two vector is 0 degree. सिंपली जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं. ठीक है, ये हो गया पहला डेरिवेशन जो कि आप लोग को आना चाहिए. ओके, नाउ